يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر رمضان سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کا آج کا دن بخیر و خوبی گزرا ہوگا، اور رب کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کے ہر دن کو باعث برکت بنائے اور آپ کا ہر دن بخیر و خوبی گزرے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق سحری اور افطاری سے ہے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سحری اور افطاری سنت کے آئینے میں۔ پیارے ناظرین، سحری سنت ہے اور احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور سحری کرنا جو ہے یہ واقعتاً سنت کا عمل ہے تو باعث ثواب بھی ہے، اور سحری کھانے میں برکت بھی ہے۔ کوئی شخص اگر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور وہ جان بوجھ کر سحری ترک کرتا ہے تو ایسا اچھا نہیں ہے۔ اگر اس کی طبیعت نہیں مانتی تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جاگ رہا ہے اور سحری کو ترک کرتا ہے۔ جیسے آج کل کا ماحول ہے کہ ساری رات کھیل اور کود میں گزار دیتے ہیں، رمضان کے نام پر ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے پلیز لے کر اس میں وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور بدبختی کیا ہے کہ فٹ بال میچز، کرکٹ کے ٹورنامنٹ اور جتنے بھی گیم ہیں ان کو یہی موسم ملتا ہے ماہ مقدس کا کہ اس میں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور سحری تک یہ کھیل کود تماشے جو ہیں یہ جاری رہتے ہیں، جو وقت کا بھی ضیاع ہیں، اجر کا بھی ضیاع ہیں، اور سحری جیسی نعمت سے بھی ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص نیند سے اٹھ جاتا ہے تو اسے اگر اس کی طبیعت نہیں بھی مانتی تو کم از کم سحری کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ چند گھونٹ پانی پی لے یا کچھ تھوڑی سی چیز ہلکی پھلکی کھا لے، تاکہ سنت کے اس عمل پر وہ اپنا عمل جو ہے وہ ثابت کر سکے اور سنت کی موافقت کر سکے اور سنت کی مخالفت سے بچ سکے۔ حدیث ہمارے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ واضح ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے بھی یہ اچھا ہے، کیونکہ آگے ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص خالی پیٹ روزہ رکھے گا تو اسے نہ صرف زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے گی بلکہ ممکن ہے کہ اسے مختلف طرح کی بیماریاں بھی آ گھیریں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے۔ البتہ سحری جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے اور اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہتمام کے ساتھ سحری کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو اجر ہے اس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے
सहरी के लिए अजान देना सुन्नत है। ये सुन्नत जो है ये मफकूद हो गई है, इसको हमने खो दिया है। आजकल हमारे यहाँ इसका रवाज नहीं मिलता, बल्कि एक और चीज़ हम अपने इसमें ले आए हैं अमल में, और वो ये है कि एक सायरन बजाया जाता है। उस सायरन पर ना तो कुछ हमें अजर मिलता है, जाग तो जाते हैं लेकिन अजर की कोई बात नहीं है। इसके बदल में अगर ये किया जाए कि आज़ान को राइज कर दिया जाए, अजान हो सहरी से पहले जो वो सायरन बजाया जाता है, तो उसकी जगह अगर कोई अजान दे दे तो ये एक मफकूद सुन्नत जो है वो जिंदा हो जाएगी, और इसके ऊपर अजर भी है, अजान देने वाले को भी अजर है, अजान के सुनने वाले और उसका जवाब देने वाले को भी अजर है। तो ये एक बड़ी अजीम सुन्नत है और बड़ा अजर की बात है कि इस अमल को अगर दोहराया जाए। ये सुन्नत है जो कि मफकूद हो चुकी है। हदीस हमारे पास उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, जिससे हमें ये साबित होता है, ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है सही बुखारी मुस्लिम की, और इस हदीस से हमें वाज़ेह पता चलता है कि इसमें सहरी से पहले जो है अजान दी जाती थी। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा अन्न बिलालन रज़ी अल्लाहु अन्हा काना युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्नु उम्मी मक्तूमिन फ़इन्नहु ला युअज़्ज़िनु हत्ता यत्लुअल फज्र। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की ये रवायत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल मारूफ सहाबी हैं, मुअद्दिन रसूल हैं, तो उनके बारे में कहती हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी से कबल अजान दे दिया करते थे, यानी पहले अजान दिया करते थे सहरी से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक खाओ पियो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम, इब्ने उम्मे मक्तूम ये एक अंधे सहाबी थे और इनका भी बड़ा मकाम व मर्तबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में तकरीबन लगभग 11 मरतबा मुसल्लाए इमामत पर खड़े हुए। बड़ी अजीम सआदत है और बड़ा अजीम मर्तबा है इन सहाबी का। अंधे होने के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये इजाज़त नहीं दी कि आप नमाज जो है वो घर में पढ़ें। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इजाज़त चाहिए कि या रसूलुल्लाह मैं अंधा हूँ और घर भी थोड़ा मस्जिद से दूर है और मुझे कोई लाने ले जाने वाला भी नहीं है, तो क्या मैं घर में नमाज अदा कर सकता हूँ? तो पहली मर्तबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कर दी, लेकिन जब ये जाने लगे तो फिर बुला के पूछा कि इब्ने उम्मे मक्तूम क्या तुम्हें अजान की आवाज़ आती है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह अजान की आवाज़ में सुनता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज मस्जिद में अदा किया करो। हमें भी सोचना चाहिए, वो लोग जो सेहतमंद हैं और अच्छे भले हैं, उन्हें भी मस्जिद की तरफ रुख करना चाहिए, अपनी नमाजों को मस्जिद में अदा करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक खाओ पियो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे दें, इसलिए कि इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक अजान नहीं देते थे जब तक कि फजर न हो जाए। तो यानी पहली जो अजान होती थी वो असल में सहरी की अजान होती थी उठाने के लिए, और इससे मुराद तहज्जुद की अजान भी हो सकता है, तहज्जुद के लिए जो अजान दी जाती थी। और इब्ने उम्मे मक्तूम की जो अजान होती थी वो नमाज के लिए अजान होती थी। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बिलाल अजान दें तो खाते पीते रहो उस वक्त तक जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम जो है ये अजान न दें। अफ्तार में जल्दी करना और सहरी में देर से खाना अंबिया कराम की सुन्नत है, अंबिया कराम का तरीका है, जिसका हमने उलट कर दिया है। हमने
सहरी जो है वो जल्दी खाना शुरू कर दी है और इफ्तारी जो है उसमें देर करना शुरू कर दी है। इंतज़ार करते रहते हैं, अजान होती है तो भी हम रुके रहते हैं कि थोड़ा सा ठहर जाते हैं, हो सकता है इन्होंने पहले अजान दे दी हो। लेकिन इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि इफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए, जैसे ही अजान हो जाती है उसके साथ ही इफ्तार कर लेना चाहिए और सहरी जो है वो आखिर वक्त में करनी चाहिए। इसके फ़वाइद क्या हैं? सहरी आखिर वक्त में करने के फ़वाइद क्या हैं कि जितना आप सुबह के करीब जाकर खाएंगे अजान से पहले तो वो आपके लिए बेहतर है, पूरा दिन आप आसानी से गुजार भी सकते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन हमें हर तौर पर सुन्नत को अपनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसी में निजात है और वही तरीका जो है वो हमारी कामयाबी और फलाह का दामिन है और उसी तरीके को अपनाना चाहिए। रवायत हमारे पास अबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। कहते हैं अबी दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मिन अखलाकिन नबुव्वह, सलासुन मिन अखलाकिन नबुव्वह तअजीलुल इफ्तार व तअखीरुस सुहूर व वज़अुल यमीनी अला शिमाली फ़िस्सलाह। ये तीन चीज़ें जो है ये अंबिया की सुन्नत हैं, अंबिया की सुन्नत हैं। क्या सुन्नत हैं? कि एक इफ्तार में जल्दी करना, नंबर 2 सहरी में ताखीर करना, नंबर 3 वज़अल यमीनी अला शिमाली, अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना नमाज की हालत में। तो ये जो है ये सुन्नत हैं और इस सुन्नत को अपनाना चाहिए और सहरी के बारे में और इफ्तारी के बारे में जो सुन्नत है उस पर अमल करना चाहिए। ये रवायत हमारे पास तबरानी की है और हमने पहले भी जिक्र किया था कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी ज़ईफ़ हदीस जो है उसको बयान न किया जाए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करेक्ट मैसेज है, जो छानबीन करने के बाद सही अहादीस को अलग किया गया है, वो अहादीस आप तक पहुंचाई जाए ताकि किसी किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो पैदा ना हो। इसके बाद सहरी खाते अजान हो जाए तो खाना फौरन तर्क करने के बजाय जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए। इसका तरीका क्या है? हदीस हमारे पास अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है और अबू दाऊद की ये रवायत है, हसन हदीस है ये। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदाअ वल इनाउ अला यदिही फला यदअहु हत्ता यक़दिय हाजतहु मिन। इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदाअ, अगर तुम में से कोई अजान सुनता है, अजान शुरू हो जाती है, वल इनाउ अला यदिही, और पानी का गिलास या चाय का मग या दूध का गिलास या कोई इससे माशाअल्लाह चीज आपके सामने मौजूद है, आपके हाथ में है, तो आप उसे पी सकते हैं। जल्दी जल्दी उसे पी लें, ख़त्म कर लें। फला यदअहु हत्ता यक़दिय हाजतहु मिन, यानी जितना वो आपके पास है उसे पी लें और फ़ौरन ये ना समझे कि मसलन अजान शुरू हुई है और अभी आपको पानी पीना था तो आपने गिलास उठाया, अजान शुरू हुई उधर ही रख दिया। नहीं, इस्लाम जो है वो मुशक्क़त का दीन नहीं है। इस्लाम जो है वो आसानी चाहता है आपके लिए, और इस चीज़ को शायद मद्देनज़र रखा गया कि अगर आप पानी जो है यहाँ ला के आपने रख दिया तो सारा दिन आपका ज़मीर जो है वो इसी चीज़ के गिर्द घूमता रहेगा कि वो मैं पानी पी लेता तो अच्छा था, शायद अब मुझे प्यास लगेगी। और इंसान की जो इंटेंशंस हैं वो बड़ा रिएक्ट करती हैं और वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली इंसान फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग जो है वो उसे सर्कुलेट कर रहा है और वो चीज़ जो है वो बार बार उसके दिमाग में आ रही है
کہ मैं अगर उसे पी लेता तो शायद आज मुझे प्यास ना लगती, मेरा रोज़ा अच्छे तरीके से गुजर जाता। तो जब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देगा तो मुमकिन है बहुत सारी अच्छाई की चीज़ें, कुरान की तिलावत, नमाज़ों के औकात, ज़िक्र व अज़कार, हो सकता है इस टेंशन में इंसान उससे हट जाए। तो मुमकिन कि ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए ये इजाज़त दी गई कि आपकी तवज्जो जो है वो किसी दूसरी तरफ ना जाए और आप सही तरीके से उस पर कारबंद रह सकें। लिहाजा वो पानी का गिलास जो है या वो मग जो है चाय का, दूध का, वो आप पी सकते हैं। इसमें आपको सुन्नत में इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू दाऊद की ये रवायत हमने आपके लिए बयान की। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। रोज़ा इफ्तार करने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब जो है ये शर्त है। वो सहरी के मसाइल हुए, उसके साथ अब इफ्तारी की तरफ आते हैं। तो रोज़ा इफ्तार करने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब का होना शर्त है। वक्त का मुतय्यन नहीं कर सकते। कैसे? यानी 16 घंटे का रोज़ा है तो ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए शर्त है कि सूरज जो है गुरूब होना चाहिए। आप जिस कंट्री में भी हैं, एक कंट्री में आपने रोज़ा रखा और दूसरे कंट्री में आप जा रहे हैं और वहाँ जिस कंट्री से आपने ट्रैवल किया वहाँ अगर 10 घंटे का रोज़ा है, जिस कंट्री में आपने पहुँचना है वहाँ 16-17 घंटे का रोज़ा है, तो आपको उस कंट्री के वक्त के मुताबिक जब सूरज गुरूब होगा तो उस वक्त वो रोज़ा इफ्तार करना है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस हमारे पास मौजूद है, बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है। अन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबत अश-शम्सु फ़क़द अफ़तर अस-साइम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार रोज़ा खोल ले। तो इससे वाज़ेह होता है कि इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त से है, सूरज के गुरूब होने से है, ना कि घंटों के तयन से है कि 12 घंटे का तयन करके हम रोज़ा रख लें और उस वक्त इफ्तार कर लें, या 16 घंटे का इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि मैंने बयान किया है कि सफ़र आप अगर करते हैं और कहीं से आपने सफ़र किया, अभी रोज़ा इफ्तार करने में 15-20 मिनट बाकी हैं और जहाज़ में आप सवार हो चुके हैं, जहाज़ जो है उड़ना शुरू हो गया है, उसने उड़ान भर ली है और उसकी परवाज़ जो है वो अपने बुलंदी पर पहुंच चुकी है। 20,000-30,000 फीट की बुलंदी पर जब पहुंच जाता है तो वहां आपको नज़र आता है कि सूरज हमें दिख रहा है। अब 15 मिनट का वक्त था जहां से आपने सफ़र शुरू किया रोज़ा इफ्तार होने में, आप अब बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, वहां आप देख रहे हैं कि अभी तक सूरज गुरूब नहीं हुआ, 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आधा घंटा गुजर चुका है, सूरज गुरूब नहीं हुआ। तो जब तक वहाँ सूरज गुरूब नहीं हो जाता उस वक्त तक आप रोज़ा इफ्तार नहीं करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर होंगे इसी सीरीज़ के अगले हिस्से की तरफ। ये हमने पार्ट 1 किया था, इसका पार्ट 2 इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें मौका देगा और अगली सुन्नतें आपको बयान करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।